تو یہاں پر ہم آئے ہیں اور کافی کردار ننگے ہو چکے ہیں، کافی لوگوں کا پتہ چل چکا ہے، اور یعنی تمہیں محبت نہیں ہے زبردستی کہ میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا ہے؟ نہیں، مجھے تو محبت ہے، کیوں نہیں ہے؟ میں نے محبت میں جو ہے وہ چیخیں اسی لیے ماری، شور اسی لیے مچایا کہ میری محبت جو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گی، اور میں ان کے اصلی چہرے جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آؤں گی کہ میرا گھر توڑنے میں کس کس کا حق ہے اور کون کون میرا گھر توڑنا چاہ رہا ہے، اور میں اپنا گھر توڑنے نہیں دوں گی کسی کو۔ اور اگر یہ معاملہ اس طرح سارٹ آؤٹ نہیں ہونا تھا تو جن جن لوگوں نے میرا گھر توڑوایا تھا ان لوگوں کی چیخیں نا آپ کو پورے پاکستان میں سنائی دیتی۔ لیکن عروسہ کی یہ اچھائیاں میں کیا بتاؤں، مطلب وہ لائیولی میں سی ایم ایل کے ساتھ کروں گی، تو عدیل بھائی ہیں سی ایم ایل سے، ان کا مجھے فون آیا تھا کل اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے لازمی آنا ہے آج کی رائڈ پہ، جو سائیکلنگ کی ہم لوگ لبرٹی سے شروع کریں گے۔ اور Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا اور میں ہوں افضل، لیکن آج آپ لوگوں کو میرے ڈریسنگ سے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر افضل صاحب ہوں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایک تو ڈاکٹر روبی ملک ہے، ایک ڈاکٹر نبیہہ ہے، ایک ڈاکٹر رجب بڑھ ہے۔ ہم ان ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں نا اینڈ پہ بتاؤں گا، اور مردوں کے لیے اسپیشل آفر ہے۔ اور جو عورتیں جو بوٹوکس اور فلرز کراتی تھیں، اور اب مرد بھی بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل مردوں کے لیے بہت کچھ میں لے کے آیا ہوں، اور آپ بالکل غم نہ کریں، آپ سب ہمارے بھائی اور ہم سب ایک ہیں۔ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، مطلب لے کے آئیں، کوئی کیپسول لے کے آئیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی چیز لے کے آئیں کہ آپ تو حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور یہ علاج جو نہ ڈاکٹر نہ بابر حکیم کر سکتے ہیں، نہ لوہا پاڑ حکیم کر سکتا ہے۔ حارث کھوکھر کا اور اقرار الحسن کا علاج اب کرنا ہے ڈاکٹر افضل نے، کیونکہ اس کی بیوی جو تیسری ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ کسی پنڈ تھا جھگیوں میں رہتی تھی اور فقیر نہیں تھی بالکل، اور اس کو جب تھوڑا سا پیسہ ملا تو وہ کپڑوں سے باہر ہو گئی، حالانکہ اس کپڑوں سے باہر نہیں ہوئی، کپڑوں سمیت اتنی واحیات ہو گئی ہے نا کہ جتنی بھی لان تان ان پہ کرے تو وہ کم ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے مجھے پہلے شک تھا، میں آپ سے کہتی تھی کہ جو تیسری بیوی سے نہیں کیا سچ بتاؤ، یہاں دیکھنے والے پہلے دن آپ نے مجھے بولا تھا یہ خسرا ہے، خسرے کو چھوڑیں، میں نے آپ میں نے کہا نہیں یہ اس کی بیوی ہے۔ نہیں لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ فقیروں کے گھر سے آئی ہے جو ننگی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو باقی دو بیوی ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ بھی ان کی اوور ایکٹنگ دکھاتے ہیں، ان کا علاج آپ نے آخر میں کرنا ہے، کیونکہ دوستو اقرار الحسن کا آگے بچہ نہیں ہو رہا، اب اس کی دونوں بیویاں جو ہیں فرح اور یہ جو عروسہ نام نہاد بیوی جو ہے، جو فقیرنی جھگیوں سے اٹھا کے لایا، یہ کسی جھگی باز سے اٹھا کے لایا، تو اب ان کے بچے نہیں ہو رہے، نہیں ایک ہی بچہ ہے، ان کا بیویاں تین ہیں، تو پھر چار بیویاں تھیں، چار ہے، لیکن ان پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بچہ ایک بیویاں تین چار بات تو صحیح ہے۔ تو اس لیے جو ہے اقرار بھائی میں کوئی خلل ہے یا ان کی بیویوں میں کوئی خلل ہے، یہ آج کی ویڈیو میں پوسٹ مارٹم کریں گے۔ بیوی میں تو خلل ہے ہی نہیں، اس میں خاص کر عروسہ میں اس کو تو اتنی آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی اسے آگ نہیں کتنی ایک لگی ہوئی ہوتا ہے آگ، ایک ہوتا ہے کچھ اور ہونا، لیکن بہرحال اس پہ کرتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ ویڈیو دیکھیں، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور دوستو ہمارا ویڈیو جو ہے نا آفٹر نون میں 12 بجے پاکستانی ٹائم اور شام کو 7 بجے نشر ہوتا ہے، نہار پیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے ہنسنا ہے، تو ہنسنے کے لیے پیٹ اگر نہار پیٹ ہو تو ہنسنا بڑا ٹائٹ آتا ہے۔ پانی کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے، تو یہ آپ کانوں کو ڈاکٹر صاحب لگائیں، یہ آلہ ہے آپ کا جسے آپ دل کی دھڑکن ان کی محسوس کرتے ہیں، ساروں کی جتنے بھی 2 نمبر لوگ لگے پھرتے ہیں۔ اچھا دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو عروسہ نامی عورت ہے یہ اس کو بیوقوف بنا رہی ہے اقرار کو، اور یا یہ پیدائشی بیوقوف ہے، یا یہ بیوقوف بنا رہی ہے، یا ولاگز کے لیے سارے بیوقوف آپس میں بنے ہوئے۔ یہ دیکھیں اب یہ کیا کہہ رہی ہے عورت نا، اس کی پہلی بیوی بھی کھڑی ہے، وہ بہت خوش ہے، پہلی بیوی نے سنا ہے اس کو شادی کرائی ہے اس جھگی باز سے، اچھا ہاں تاکہ اس کے بچے کو لے کے پھرتی بڑی رہتی ہے۔ نیک خاتون ہے یہ، ڈائریکٹ جنت میں جائے گی، کیونکہ اپنے لیے سوتن خود ڈھونڈ کے لے کے آئی ہے۔ نہیں دوسری بیوی سے انتقام لینے کے لیے اس سے شادی کرائی تو ہے۔ فائدہ تو اقرار کا ہوا نا، یہ تو وہی سین ہے کہ اگر چوری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چوری پہ گرے، بات کٹنا خربوزے نہیں لیکن ہے۔ اب بات تو صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ فائدے کا سودا ہے کہ نقصان کا، یہ آپ کو نہیں پتا، اس لیے تو آپ کے پاس آنا ہے اقرار نے بھی اور حارث کھوکھر نے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے خوش آمد کاری ہے، اس کی پہلی بیوی بھی کھڑی ہے، اب یہ کیا کہہ رہی ہے عروسہ نامی عورت۔ میری تو خیر صبح نہیں ہوتی جب تک میں ان کو نہ دیکھوں، تو ماشاءاللہ سے بس اللہ کو سلامت رکھے۔ میں ہمیشہ میری
इन वालिदा के बाद मेरी जिंदगी की सबसे अहम जो खातून है वो कुर्रतुल ना हम सब के लिए बिल्कुल हम अच्छा जी ये कन लगा रहा अच्छा है। जी ये तीसरी बीवी कह रही है कि जब तक मैं इसकी पहली बीवी को ना देख लूं ना तो मेरी सुबह नहीं होती, और वो आगे से और मक्खन लगा रहा है कि हाँ मेरी वालिदा के बाद ना साथ खारिज कह रहा है झूठ बोलते हैं। जब ये झूठ बोलते हैं ना, मर्दों की आदत होती है, आप औरतें में नोट कर लें, या नाक को खुजाते हैं या सर को खुजाती हैं, कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात कही है आपको जब झूठ बोलते हैं, तो ये ना तारीफें कर रहा है झूठी। ठीक है, अब हम आपको ये दिखाते हैं कि इसकी जो है ना, ये देखें अभी देखें अरूसा की खुशामद कैसे हो रही है, सुने। लेकिन अरूसा की ये झाइयाँ मैं क्या बताऊं, मतलब वो लाइवली जिंदगी है उसके अंदर, उसमें इतनी समझदारी है। मैं और एनिक सर ये कहते हैं कि हमें इसकी अब तक समझ में नहीं आया कि ये सादा ज्यादा है या ये असल में ये कहना चाहता है कि इसकी अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि ये नंगिया ज्यादा है या ये शरीफ ज्यादा है या ये खुल के जो है ना कमीनगी करने वाली ज्यादा है। असल में ये बात कहना चाह रहा है, उससे ना मुंह से निकल नहीं रही बात कि उसको भी तक समझ नहीं आ रही। ऐसा बंदा जो जाके छापे मारता है क्राइम को पकड़ता है, उसको इस औरत की समझ नहीं ये आ रही। बात तो नहीं है कि इकरार भाई ने बहुत सारे झूठे ड्रामे करके अपने प्रोग्राम को हिट करवाया था ARY पे, अब उसकी सजा के तौर पे अल्लाह ताला ने इसकी जिंदगी में ये औरत भेजी है अच्छा। ताकि सूद समय दिन का इंसाफ हो। अच्छा अब ये देखें जो इसकी दूसरी बीवी है फराह, जो माई बना दिया इसको दुखों और गमों ने, उस वो देखें पहले कैसे दिए। देखें ये आप इसके देखें जो पीछे खड़ी है इस लड़की नुमा लड़के के पीछे, ये वही फराह है जिससे इसने शादी की, और आप देखिए कितनी नाजुक सी थी जब इसने शादी की इसके साथ, और आप इसको माई बना दिया, हालांकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है फराह, लेकिन बेचारी क्योंकि भाई नेचर शरीफ थी, शरीफ माँ की औलाद थी, बिल्कुल। तो उस बेचारी ने इसी पे इत्तेफाक कर लिया कि चलो, यानी कि अब आपका इसी पे मतलब इत्तेफाक ये कर कि लेते सारे हैं। दुख अंदर अंदर ही उसे उनको हाँ। चेहरे का वो रंग ही उड़ा दिया हाँ जी, उसने। आप देख इकरार साहब की बीवी भोली भाली तीसरी दिखाते हैं बकौल उसके कि बहुत समझदार है। कि समझ नहीं आती, समझदार को देखे कि समझदार क्या कर रही है। ठीक है, समझदार एक लड़के के साथ जो है ना अयाशियां पाड़ रही है, तुम तो जाना पापा पापा पापा। वीडियो पूरा नहीं यहाँ चलाया देखिए, आपने। नहीं चला गया, यहाँ देखिए आ रही है, हाँ 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 रवीना टंडन अच्छा दोस्तों इसलिए नहीं हम पूरा चला रहे हैं। अच्छा ये देखिए कि यहाँ पे क्या ये दिखा रहे हैं, कोशिश कर रही है, देखिए क्या दिखा रही है यहाँ, तौबा क्या तौबा, दिखा रही है, अस्तगफिरुल्लाह। क्या दिखा रही है, आय 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 आय, आपको तो नहीं देखना चाहिए, आय आय। नहीं अच्छा, मैंने देख लिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये आपके कार से निकालती हूँ। अब हम आपको ये बताते हैं कि वो जो हारिस खोखरे इसका आपने इलाज करना है, हाँ ठीक है, उसका भी आपको बताते हैं कि वो जब वापस आए हैं, ठीक है, दोनों मियाँ बीवी, तो वो क्या करने लगी है, मॉडलिंग। अभी वो उतरे वहां से और इतनी मशहूर हो गए हैं कि बड़े बड़े उसको जनाब ब्रांड, ये देखें इसको, ये देखें हमारे ब्रांडों ये दुल्हनों के ड्रेस पहन के खड़ी हुई ब्रांडों है। के लिए भी एक बात नबिया, बताऊं, डॉक्टर हाँ नबिया, ये उसको देखें। छोड़ देना, आवाज हम नहीं चला सकते, वीडियो चलता रहेगा। ये सारे ब्रांड पहन के लेकिन जनाब ब्रांडों पहन के लिए मैं एक बात बताऊं, हमारे मुल्क के ब्रांड भी बड़े पागल और चवल है। हाँ जी, वो ये नहीं देखते कि इस पर्सनैलिटी की इज्जत कितनी है, लोग एहतराम कितने करते हैं, लेकिन बस उनको तो वही लोग चाहिए जो वायरल हो, हाँ जी, बिल्कुल। चाहे वो बदकार हो, बात तो सही है। चाहे वो जो भी हो, लेकिन बस वो वायरल हो, उनके पीछे ब्रांड वाले भी पड़ जाते हैं। ये देखें अभी कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं इसका, जो जिसका अपने इलाज करना है, ये देखे जरा ये क्या कह रहे हैं, सुने हारिस खोकर। दुश्मनों को क्यों मारना है, पहले ही मर चुके हैं वो। दुश्मनों को क्यों मारना है, पहले ही मर चुके हैं वो। मर जाओ। कह रहे दुश्मनों को क्यों मारना है। ये देखिए अभी दोनों यहाँ के क्या कर रहे हैं बातें। मरी के रास्ते में हैं हम और इस टाइम मेरे कान बंद हो गए हैं, मैं क्या करूं हारिस, कान बंद हो गए मेरे। अगर जहाज में बैठ के ऊंचाई पर जा रहे हो तो कान बंद होते हैं, अगर गाड़ी पर जो है वो पहाड़ों पर जा रहे हो तो कान बंद होते हैं। इसका आसान हल पता है क्या है? क्या? थूक अंदर लेके जाए, कान खुल जाएंगे, क्योंकि नाक कान गला का कनेक्शन है, ENT, ईयर नोज थ्रोट। ओके तो अच्छा जी ये अच्छा डॉक्टर भी है ये। अच्छा ये जो ENT स्पेशलिस्ट है, ये जो वापसी पे बता रहे हैं कि कान गला और शरीकों को बुरा भला कह रहे हैं, और ये रास्ते में ये भी दिखा रहे हैं कि ये देखें जी वापसी आते हुए रास्ते में लैंडस्लाइडिंग की भी आपको झलक दिखा देते हैं। ये देखें पत्थर ही पत्थर, और सब इतना इतना ये बड़ा हार मशीनें लगी पहने हैं, जिस तरह वो मनका नहीं पहनते। और इसके पत्तवीज। अच्छा दोस्तों इस पूरे सफर में इन दोनों के पास सिर्फ 2 सूट थे,
हाँ फिर अब ब्रांड वालों ने कहा कि तुम आओ, तुम्हें हम कपड़े देते हैं, लेकिन हारिस खोकर को फिर भी किसी ब्रांड ने नहीं बुलाया। नहीं, उसको कहा कि तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है ना, इसमें बहुत बड़ा, कपड़े इसको नहीं अंदर आएंगे, करो। तुम तो फिर वो बहुत मोटे लगोगे। हाँ, अच्छा तो दोस्तों, डॉक्टर साहब आप बताएं इनका क्या करना है? इकरार आजकल के बच्चे एक हों और इसके भी हों आगे, अब ट्रेंड क्या चल पेड़- चुका है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, टाइम थोड़ा कम है। पेट बड़ा हो गया ये कह रहे हैं। उसका जब ये वापस आए ना, पेट तो बड़ा होना चाहिए था नबिया का, लेकिन पेट बड़ा हो गया डॉक्टर हारिस का, काम हो गया उल्टा। तो दोस्तों अब उसका इलाज डॉक्टर अब्दुल साहब करेंगे। और दूसरी बात ये है कि वो जब आई ना वापस डॉक्टर नबिया, उसने तो मॉडलिंग शुरू कर दी, हमने आपको दिखाया है। और ये जो है हारिस खोकर, वो हकीमों के पास, बाबर के पास, लोहा पाड़ के पास गया, कुछ ना बना, क्योंकि पेट जो है ना उसका बड़ा हो गया, अब उसका कोई तो काम दोस्तों, है। आप पेट को छोड़ दे। हाँ। बहुत से हमारे मुल्क में खवातीन, अब जिस तरह इकरार भाई की ये बीवी है ना, बीवी नंबर तीसरी, तीसरी जो झुग्गियों से आई है, झुग्गियों हाँ, से। बात तो सही है। इन्होंने मुझसे डिस्कशन की। बल्कि बड़े लोग आजकल सोशल मीडिया पे एक बात करते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज के लिए मैं ये कहता हूँ कि जो लोग अपने चेहरों पे, अपने जिस्म में फिलर भरवा देते हैं, फिलर फिलर का मतलब ये होता है, मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊं, जैसे हवा भरना है जिस्म की किसी हिस्से में। तो जाहिर बात है, जब वो उन पे पैसे लगाएंगे तो फिर तो उनको दिखाना पड़ेगा। सब क्या देखना पड़ रहा है। खातून है ना, खातून है बीवी नंबर तीसरी, यहाँ पे तस्वीर लगा देंगे ताकि आप अच्छी हाँ। तरह देख लें क्या क्या तो भरवाया है। दोस्तों, ये आगे आगे से इसलिए कैमरे में कुछ ऐसे अजीब एंगल आप लोगों को दिखाती है कि इसने कहा मैंने पैसे दिए हुए हैं, बिल्कुल। ताकि आप लोगों को रिजल्ट का तो पता चले। तो बड़े लोग हैरान थे कि सिर्फ खवातीन इस तरह करते हैं, लेकिन हारिस खोकर भाई, हकीम बाबर और हकीम लोहापाड़, आप लोगों को एक मशवरा देता हूं कि मर्दों के लिए भी ऐसे सेशन आ गए जिनके प्राइवेट पार्ट्स में फिलर भरवाए जाते हैं। और अब आप लोगों को फिक्र की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुबारक कोई हो, मर्द मुबारक बांझे, हो। अच्छा, आपने सुना होता था पुराने जमाने में ना, खवातीन बांझ हुआ करती थी। अच्छा। अब कोई मर्द बांझे, सही। बर्त मांझ नाम दे देता हूँ। अच्छा। और अगर उसकी उम्र ज्यादा है तब भी उनकी औलाद पैदा हो सकती है। वाह। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक को देखें, चेंज अब करने आप- में लगे अब हैं। आप देखें ना कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। दोनों मियाँ बीवी गए थे स्वात, हाँ। तो बच्चा जो है अब उसने पैदा करना है, हारिस का हो गया। साइंस यहाँ तक पहुंच गई है। साइंस तो जाहिर बात है, क्योंकि डॉक्टर रूबी ने कहा था कि जाके उनकी वहां पे हक ज़ौजियत वाला किस्सा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। और दूसरी बात, रूबी मलिक को एक मशवरा है कि जो उसके पास यूएसबी थी, हाँ, वो किधर है? खुदा का वास्ता वो यूएसबी अवाम को दिखाए। 27 करोड़ अवाम परेशानी मुब्तला है, हाँ। क्योंकि रजब भट्ट के बाद तुमने शोशा छोड़ दिया। मेरे पास एक यूएसबी है तेरे पास कक भी नहीं। बिल्कुल। मैं सच्ची कह रहा हूं कि जिस तरह तुम्हें बोलता था ना हारिस खोकर, ओ ऑयल टैंकर, ओ कूड़े के ट्रक, ओ वासा के पानी ले जाने वाले ड्रमों वाली और- गाड़ी। लेकिन इनका हिसाब पता है क्या है इन सारे यूट्यूबरों का? हाँ। ये जैसे सियासतदान बाहर आके तो गालियां देते हैं एक दूसरे हाँ। को, और अंदर जाके सारे इकट्ठे बैठ के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कैसे मुझे को बनाया हुआ अवाम को। तो फिर तो हम पे लोग ये यकीन करेंगे कि शायद डॉक्टर नबी और हारिस के ऊपर ये सब हम एक ही हैं। सारे मिलके यूट्यूबर जो ये हैं आपस में मिलके हंसते हैं कि कैसे हमने अवाम को बेवकूफ बनाना है। ये भी सियासतदानों जैसे हैं। बात तो सही है। यूट्यूबर है, आपको पता ही नहीं है। तो पीछे दोस्तों, हंसते हैं बात बैठ को के। थोड़ा सा वीडियो तो आप लोगों ने देखा, टाइम है तो क्यों ना डिस्कशन कर लें। हाँ। आज डॉक्टर जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जनाब, 100 में से 70% जो बच्चियां हैं उनकी डिलीवरियां बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, हाँ जी। और होती भी हैं। लेकिन जानबूझ के वो डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, बड़े बड़े वाले, उनको इतने डराते हैं, उनको ऑपरेशनों की तरफ लेके जाते अच्छा, हैं। पहले हम आपके डॉक्टर जो बहुत अच्छे हैं पख्तून, जो बड़े नेक नियत हैं, हाँ उनको जी। पश्तो में सुना देते हैं, फिर आपने इनको सब कुछ सुनाना है। थोड़ा सा उनका वीडियो सुना देते हैं पश्तो में, आपने ट्रांसलेट कर देना फिर। दा जमा द अमेरिकी ग्रीन कार्ड दे ये अमेरिका का ग्रीन कार्ड है इसके पास। 2020 के एक्सपायर शो 2000 नबाद माद मुल्क ना बाहर तल परे खुदन माखपल वतन दा पारा कुर्बानी वर्कड़ा दा जमा द चलें जी, बाकी आप बता दें डॉक्टर दोस्तों, साहब, ये डॉक्टर साहब है सैयद आसिफ शाह। आसिफ शाह पेशावर में है, और ये सर्जिकल काम करते हैं, जो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। और सारे यानी कि फिलर दोस्तों, फुलर ये हिट सब था कुछ। पेशावर हेल्थ में, बहुत बड़े ओहदे पे फाइज था। नेशनलिटी छोड़ के 20 साल पहले ये मुल्क से बाहर कभी नहीं गया, क्योंकि इस मुल्क में रह के इन्होंने आवाम की खिदमत करनी है। लेकिन पेशावर गवर्नमेंट ने, अफसोस से कहना पड़ रहा है, पेशावर गवर्नमेंट ने इसको बोर्ड से अलहदा कर दिया। क्यों किया? कि इसको कह रहे या तो आम यंग डॉक्टर की तरह बनो, हाँ, 2 नंबर या करो। 2 नंबरियां करो, या अपने बोर्ड को छोड़ दो। तो इन्होंने
वही नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ी? कि ये करप्शन नहीं कर सकता। और हमारे मुल्क में जो आजकल डॉक्टर हैं वो डॉक्टर नहीं कसाई हैं, वो डाकू और कसाई हैं। कहीं पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आपकी अगर तकरीबन आज के महंगाई के दौर में आम से एक डॉक्टरनी के पास तकरीबन कोई 30 से 35-40 हजार में हो सकती है, लेकिन बड़े डॉक्टर आपको डरा के 3.5 लाख 4.5-5 लाख पे आपका एक ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं होती वो करते हैं। क्योंकि दुनिया में इंसान को लाना अल्लाह की तख्लीक है, नेचुरल तरीके से होता है। और दोस्तों ये आपके अच्छा, बहाना अवेयरनेस क्या के लिए बहाना है? पहले इनकी अवेयरनेस के लिए एक पैगाम मैं भी देना चाहती हूँ। दोस्तों मैंने पूरी दुनिया देखी है प्रैक्टिकल में, तो मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ जिसमें प्रैक्टिकल में अगर आप कहेंगे भी तो मैं आपको अपने पासपोर्ट जो ना 8-10 दिखा दूंगी, उसकी तरह डॉक्टर नबिया की तरह जाली डिग्री जैसे वो नहीं दिखाती ना, मेरे पास असली पासपोर्ट है पूरी दुनिया के। तो मुझे नेशनैलिटी, मुझे 5 साल का वहाँ का अमेरिका का वीजा मिला हुआ, सारे मुल्कों के, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगी, मैंने दुनिया देखी है। अच्छा अब यहाँ जो है ना दोस्तों पाकिस्तान में मैं हर तरह के डॉक्टर के पास गई हूँ। बिल्कुल जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ सारे चोर उचक के लिए डॉक्टर हैं और डॉक्टर बैठे हैं। रो रहे थे वो बीबी, तू रो अपने मुख पे डालो। डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, यकीन करें वो आपको पागल खाने में जो पागल होते हैं ना उनकी दवाइयाँ दे के भेज देंगे। और जाहिल औरतें जो इमारत देखती हैं, चकाचौंध देखती हैं, खाकर वो पागल हो जाती हैं, और पागल होकर फिर वैसे साइको बन जाती हैं क्योंकि ड्रग्स होती हैं उन दवाइयों में। बात तो सही है। पागल होकर हमारे खानदान में ऐसे किस्से में, हमारे जानने वालों में हुए, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि नौजवान लड़कियों को माँ बाप लेके आते हैं बड़े बड़े क्लिनिकों पर, बड़े बड़े दिमागी वो वक्ती तौर पर उनको टेंशन होती है, वो उसको ड्रग्स पे लगा देता है डॉक्टर, और लाखों करोड़ों रुपया छाप रहे हैं। इसी तरह बच्चे पैदा करने के मामले में भी जाहिल औरतें बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाती हैं और वो ऑपरेशन से बच्चे पैदा कर देती हैं। कोई तौलिया भूल जाती है पेट में, ले डॉक्टर कोई कुछ भूल जाती है, कोई मार देती है, ठीक है। फिर ये वजन बढ़ जाते हैं लड़कियों के। फिर ये ड्रा के ये औरतें जो है ना लेडी डॉक्टर है बड़ी खतरनाक हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं 99% डॉक्टर जो है ना प्राइवेट वो डाकू और डकैत हैं, इसमें औरतें भी शामिल हैं, आदमी भी। ये बड़ी अच्छी बात ये कही है। पूरी टीम है, हाँ, एक पूरा नेटवर्क है जो आप लोगों को लूटते हैं। लूट रहे हैं, और 1% एक ही बंदे को कांसी लगे, हाँ जी, उसको डायरेक्ट कोई पिनडाल वगैरह इस तरह की कोई गोली या कोई शरबत देंगी या कोई और परमानोल वगैरह। और अच्छा क्या करते हैं पता है, जाओ टेस्ट करके आओ, हाँ। टीबी का टेस्ट करवा के शौकत खानम से करा आपकी के आओ। 10,000 का टेस्ट करके, नहीं आपकी कांसी नेचुरल है, ये दवाई का। अच्छा दूसरा इनको ये भी तरीका बता देते हैं कि कभी भी बड़ी इमारत पे दोस्तों ना जाएं। मैं हमेशा उस डॉक्टर के पास जाती हूँ जिसका बुसीदा कमरा होता है, टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी होती हैं, ठीक है। वही डॉक्टर जो है ना बेहतरीन डॉक्टर भी होता है, उसी से मैं अभी भी इलाज कराती हूँ। बड़े डॉक्टर के पास मैं बिल्कुल नहीं जाती, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती। ऐसे बड़े डॉक्टर जिन्होंने उमर शरीफ जैसे के दिल के भी ऑपरेशन किए हैं, मैं उसके हत्थे चढ़ गई, उसने मुझे लूटना चाहा, मैंने कागज फाड़ के वो मारा, क्योंकि मैं दोस्तों हर चीज को समझ जाती हूँ आपकी दुआ से। तो मैंने कहा ये डॉक्टर जिससे उमर शरीफ का पता नहीं इसने भी ऑपरेशन जायज कर दिया दिल का। तो इसलिए आप लोग ना इमारत ना देखें, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसलिए तो लोग अब देखें ना, जैसे ये टिकटॉकर औरतें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के फिरती हैं हैवल जैसी। अगर आप इनको ना जानते हो, ये आपके पास आप कहेंगे बड़ी कोई करोड़पति है, जद्दी पुश्ती बड़ी अमीर है, जबकि वो तो अमीर नहीं, वो तो आपको पता है कौन सी औरतें क्या कर रही हैं। इसी तरह ये डॉक्टर भी इनसे ज्यादा बुरे हैं, इन टिकटॉकरों से, यूट्यूबरों से, जो कुछ आपको दिखा रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, तो आप लोग जो है ना उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और दूसरी बात, बहाना क्या बनाया हुआ है, नहीं आजकल जो नेचुरल खुराकें हैं ना वो नहीं है, तो ये फास्ट फूड और ये बकरियां भी तो सारा वो चारे जो खाते हैं ना वो भी टोटल आर्टिफिशियली हो गए, तो वो तो नेचुरल बच्चे दे रहे हैं। तो ये इंसान तो फिर इंसान को क्या हुआ कि तुम लोग ऑपरेशन की तरफ लेके जाते हो, 3-4 लाख गरीब लोग अपनी घर की बालियां बेच देते हैं। ये तो इस्लाम में भी आपने बताई थी कि हदीस है कि बिल्कुल औरतों के पेट काटे जाएंगे, बिल्कुल क़यामत से पहले। आप मुझे बता रहे हैं दुनिया में आना एक नेचुरल चीज और है, क़यामत से पहले औरतों के पेट चाक किए जाएंगे, यानी ये भी कोई हदीस आप मुझे बिल्कुल। तो दोस्तों ये लोग आपको लूटते भी हैं और आपकी सेहत के साथ भी खेल लेते हैं। इसलिए ये जो बाकी डॉक्टर बने हुए ना, डॉक्टर रजब, डॉक्टर नबिया, इनको माफ कर देते हैं हम, इनका तो इलाज खुद डॉक्टर अफजल ने करना है। तो दोस्तों आप बताएं कि आप हमारे इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो क्राइम के ऊपर भी मेरी नजर है, मेरी उस पर भी, उसको भी आगे से आगे शेयर करें। डॉक्टरों के पास जाके बैठने से सिर्फ उनकी कुर्सी और उनकी चीजों पे ना देखें, उनसे ये भी सवाल पूछिए, डिग्री दिखाओ, किस मुल्क की है, कहाँ पढ़े हो, जरूर पूछिए। डिग्रियां भी जाली लगा के लगाई होती है दोस्तों। बस प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना।